So, good evening, everyone. I'm Kriti Agarwal, the host for today's event. So, before starting with the event, I would like to give you a brief introduction about ACM. So, as you all know, it is a global community for advancements in science and technology. It organizes various events and activities and has around 200 student chapters across different nations, of which CCET ACM is one of them. So, over years, CCET ACM student chapter has been growing and involving more tech enthusiasts who share their experience and knowledge in their domains with other budding technocrats. So, currently, we are working upon research development with a focus on web development, competitive programming, and designing. So, our overall goal is to envision building a community of like minded people who love to code, collaborate, and have fun in a tech savvy society. Keeping this in mind, we also invite interested speakers to discuss and share their skills in their areas of expertise with other individuals and technology associated people. So, today we are conducting one such event. So the speaker for today's event are Ashutosh Thakur and Ishleen Kaur from Department of Computer Science and Technology, um, Chandigarh College of Engineering and Technology, Chandigarh. Now, without taking much time, let's start the workshop in illustrating poster making and Adobe Illustrator. Stage is all yours. Hello everyone. Today we'll illustrate poster making with Adobe Illustrator. So the contents that we'll cover today are introduction about Adobe Illustrator and its uses, the workspace and the user interface of the software, the tools and their uses in it, and some shortcuts that will speed up your workflow. And last but not the least, hands-on session on poster making. So let's just dive right into it. Starting with the introduction, Illustrator is a vector drawing program. It is used to draw illustrations, cartoons, diagrams, charts, and logos. In Illustrator, it uses mathematical equations to draw out shapes, unlike a bitmap image that stores information in a grid of dots. So, whenever we make a graphic in Illustrator, it is scalable. That is, we can resize it and without the loss of resolution. So next, there are two types of graphics, raster graphics and vector graphics. So the difference between the two is that the raster image is made up of pixels while a vector image is made up of vectors. Both the formats have their advantages and disadvantages. The leftmost you can see there are pixels aligned and Just a second, Ishleen. Sorry to interrupt you, but I think we have a hand raised in the meeting. yes, Tejashri. Okay. It will be by mistake. Continuing, the difference between the both is that the raster graphics is made up of pixels, while the vector graphics is made up of vectors. So they both have their own advantages and disadvantages. But when working with vectors, the object can be scaled to any dimension without losing quality. But if a raster image was scaled up, the pixels would scale, resulting in a fuzzy image, as you can see here. And while the vector would stay sharp. Next up is Photoshop is such a okay. So Photoshop is a software that is a raster image editor, while Illustrator is a vector graphic editor. The Photoshop is used for photographs, manipulation, and creating web graphics and mockups, while Illustrator is used for printable media, artworks, creating logos and icons, and also documents.
So next up, we'll discuss about the workspace of Adobe Illustrator. So and now I'll hand it over to Ashutosh. Hello everyone, my name is Ashutosh. So now we will be talking about Illustrator Workspace. So here's a screenshot of Illustrator Workspace. As you can see, there are different types of panels which we use in Illustrator. So first one on the top left corner, we have menu bar. In menu bar, there are different type of option. When we start a new project, we let's go to Illustrator. मोर इजी टू सो जब हम कोई भी नया प्रोजेक्ट यूज करते हैं सो हम मेन्यू बार से यूज करते हैं सो फर्स्ट हम कोई भी न्यू प्रोजेक्ट हमें अगर क्रिएट करना होता है तो वी कैन गो इनटू फाइल एंड देन प्रेस न्यू so as Ishleen told about that Illustrator is mostly used for printable media so printable मीडिया का एक ये एडवांटेज होता है कि हम उसको भी कितना भी बड़े स्केल पे उसको बना सकते हैं आपने देखा होगा जो भी बैनर्स वगैरह बनते हैं बैनर्स हो गए बड़े बड़े पोस्टर हो गए वो सारे इलुस्ट्रेटर पे बनते हैं वो मोस्टली होते हैं जो वेक्टर बेस्ड होते हैं so here are the dimensions of the project file which we are gonna work so you can choose any dimension so we are using pixel create so so here we have uh, menu bar next this one is our control panel this one is our tool panel and on this side we have our collapsed properties panel wait a minute so we will be starting with tools and shortcuts इलुस्ट्रेटर एक्चुअली इलुस्ट्रेटर में बहुत सारे टूल्स होते हैं लेकिन जो मेजरली यूज होते हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं जैसे कि सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पेन टूल रेक्टेंगल टूल टाइप टूल बिल्डर टूल एंड आईड्रॉपर टूल सो हम इन एक एक करके इलुस्ट्रेटर में यूज करके देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है और ये करते क्या है सो फर्स्ट वन इज आवर सिलेक्शन टूल so selection tool it is used to select any shape or object on the document window so अगर जैसे कि इसके नाम में ही है कि सिलेक्शन टूल पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं so here is the selection tool as you can see on the top of the toolbar window so selection tool इसका शॉर्टकट होता है अपना V तो सिलेक्शन टूल क्या करता है अभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको मूव करना है होल्ड करके तो हम वो सिलेक्शन टूल के साथ करते हैं सो जैसे हमारे आर्ट बोर्ड पे अभी हमारे पास एक रेक्टेंगल है सो अगर हमें इसको सिलेक्ट करना है तो वी कैन यूज सिलेक्शन टूल द नेक्स्ट वन इज आवर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल so the direct selection tool helps in extending the edges of the existing shape to form a new shape so direct selection tool क्या करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का अपना शॉर्टकट होता है ए और यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप देख पाओगे जब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करा तो हमारे रेक्टेंगल्स के एजिस पे लिटिल लिटिल बॉक्स आ गए हम इन बॉक्सेस को बोलते हैं एंकर पॉइंट्स सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकता है तो अगर हमें इस शेप की हमें रेक्टेंगल की शेप अगर चेंज करनी हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके just click any anchor point you want and move it so हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी शेप का किसी भी एंकर पॉइंट्स को उसको मूव कर सकते हैं ड्रैग कर सकते हैं एंड एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज आवर पेन टूल so the pen tool is used to draw something by creating paths are lines with two endpoints called anchors so here's the third one is pen tool पेन टूल का शॉर्टकट होता है अपना P सो पेन टूल बेसिकली यूज होता है टू क्रिएट पाथ्स पाथ्स क्या होता है पाथ जो भी हम इलुस्ट्रेटर में कोई भी शेप बनाते हैं इशलीन ने बताया कि वो एक वेक्टर शेप्स होती हैं वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं
सो वो वेक्टर ग्राफिक बनते कैसे हैं, वो बनते हैं पाथ से। सो पेन टूल उन्हीं पाथ्स को बनाता है। सो अगर हमें कोई स्पेसिफिक शेप बनानी है, कोई पॉलीगन बनाना है, तो वी जस्ट click on pen tool, add an anchor point, and then second anchor point, and so on. So it will make a shape. पेन टूल के बहुत यूज होते हैं अगर आपने किसी इमेज को ट्रेस करना हो एंड कुछ कोई स्पेसिफिक शेप बनानी हो जो आपको रिक्वायर्ड हो, तो हम पेन टूल का यूज करते हैं। सो अगर एज लेट अस से कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है, तो वी कैन यूज पेन टूल, एड एन एंकर पॉइंट, सेकंड एंकर पॉइंट, थर्ड, एंड वी गोट आवर ट्राइंगल। एंड पेन टूल से आप एक और ऑपरेशन कर सकते हैं कि आप कर्व पाथ भी बना सकते हैं। सो पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। सो कर्व पाथ बनाने के लिए आपको फर्स्ट एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे। जब आप सेकंड एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, देन यू हैव टू होल्ड एंड ड्रैग, so it will make a curve path. Next one is our rectangle tool. uh, Rectangle tool is this one. Its shortcut is M. So rectangle tool basically make rectangles. So our सबसे पहले हम rectangle tool को select करेंगे। आप माउस से भी select करते हैं M. So आपको जिस शेप का rectangle बनाना है, just hold your left click and drag. And if you want to change it after that, you can just click and drag. इसी तरह इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल आइकन, देन यू विल सी एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल। सो एलिप्स टूल का शॉर्टकट होता है एल, is to make circles or ellipse. If you want to make a perfect circle, you have to hold shift while creating a ellipse. So when I uh, when I create a ellipse without holding a shift, it will make it will create a ellipse, create a circle without definite proportions. But when I hold shift and then drag my mouse, then you will see a perfect circle is drawn. So if you want to make a perfect proportionate circle or any other shape, you have to hold shift key while creating a shape or any other polygon. So same for rectangle. If we hold shift key, then it will create a square. All sides are equal. Our next tool is type tool. So you can see here type tool, or you can also use the shortcut key T. टाइप टूल जो भी टेक्स्ट ऑपरेशन होता है हमारे में, वो हम टाइप टूल से ही करते हैं। यू कैन क्लिक shortcut key T, same as rectangle, just hold and drag and it will create a text box. अब आप देख पा रहे हो कि टेक्स्ट बहुत छोटा है, हमें इतने छोटा टेक्स्ट नोट इट इज नॉट रीडेबल। सो हम क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट एंटर योर टेक्स्ट, T CM student chapter. So we entered our text, but it is very small and not readable. So here are the properties panel. When we click on our text, properties panel शो हो जाता है अपने आप ही। सो प्रॉपर्टीज पैनल क्या होता है एक्चुअली? प्रॉपर्टीज पैनल में आपकी जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी लिस्टेड होती हैं। अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लाइक ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, स्ट्रोक, ओपेसिटी। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएंगी, लाइक ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस एंड कैरेक्टर। सो इफ यू हैव टू increase the size of the text, so here is the option for that. Let us say have to scroll on and it will increase the size of the text.
Next, if we have to change the font, here are the option to change the font. Let's say, कई बार क्या होता है, अगर आपको कोई टेक्स्ट इस हिसाब से लिखना हो कि एक ही लाइन में आए, तो जैसे अभी इसका चैप्टर नीचे चला जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे एक ही लाइन में चाहिए, सो यू हैव टू एक्सटेंड द टेक्स्ट बॉक्स. सो अगर आपको फिट करना है तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा. इसी तरह यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे सेंट्रल लाइन करना है, अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, वो सारे आपको प्रॉपर्टीज टैब में मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट टूल इज आवर शेप बिल्डर टूल. Shape builder tool is mostly used to create logos and custom shapes. तो शेप बिल्डर टूल क्या करता है, मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूँ कस्टम. लेट अस से वी हैव 3 सर्कल्स. स्ट्रोक, एंड वी नीड दैट ओवरलैप शेप, दैट 3 पेटल शेप चाहिए हमें. सो हम वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं. शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट होता है अपना शिफ्ट एम, और यू कैन डायरेक्टली चूज इट फ्रॉम हियर. तो आपने जोन से ऑब्जेक्ट्स को आपने कट या जिसको आपको मॉडिफाई करना है उनको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल को क्लिक करेंगे, एंड देन जस्ट सिलेक्ट द एरियाज यू हैव टू कीप, एंड द एरियाज जो आपको डिलीट करने हैं, जो एरिया आपको डिलीट करने हैं वो यहाँ से ओल्ट होल्ड करके आप डिलीट कर सकते हैं. just hold alt and click on the area which you want to delete. So we got our custom shape. You can fill it with color. Just like that. तो शेप बिल्डर टूल अगर जैसे इन्हीं मोस्टली इसी पर्पस के लिए यूज होता है. जैसे कोई लोगो बनाना हो, लोगो वगैरह में कई बार कस्टम शेप्स बनानी पड़ जाती हैं, तो हम शेप बिल्डर टूल का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज आवर आई ड्रॉपर टूल. सो आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, let's just say we have a rectangle, but we want the color of rectangle like this one. so we हम क्या करेंगे, हम आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की इसकी आई होती है, एंड देन जस्ट पिक द कलर. it will pick any color in artboard. Sorry. so आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस, उसकी प्रॉपर्टीज सारी कॉपी करके आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में डाल देता है. ये हम शेप के साथ भी कर सकते हैं एज वेल एज टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं. लेट्स से वी हैव अनदर टेक्स्ट, लेट्स से माय नेम. अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूं अभी एंड साइज छोटा कर दूं, अब मुझे चाहिए कि जो मेरा नेम है वो इस इसकी अपीयरेंस इसके जैसे हो. तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना नेम को सिलेक्ट करूंगा, and then select eyedropper tool, eyedropper tool, and just click on the name you want to. So it will make the appearance of both the name, both the text same. Next one is our these are the important tools and shortcuts we use in Illustrator while making any project. There are many tools in Illustrator, but these are the majorly used. ये वाले ज्यादा यूज होते हैं, बाकी भी बहुत सी टूल्स होते हैं, वो अभी बेसिक्स में इतने यूज नहीं होते. नेक्स्ट वन इज आवर शॉर्टकट्स. तो शॉर्टकट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने टूल्स. जैसे कि पैन हो गया, जूम हो गया, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो गया. ये शॉर्टकट क्या करते हैं कि आपका वर्क फ्लो थोड़ा तेज कर देते हैं. अगर आप
बार बार माउस से सिलेक्ट कर करके उसको वो करोगे, चेंज करोगे, तो उससे बहुत टाइम लग जाता है। सो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स याद हो तो वो आपके वर्क फ्लो को हेल्प करता है और थोड़ा उसको स्पीड अप कर देता है। जैसे कि पेन, पेन क्या होता है, जैसे कि अगर आपने अपने आर्ट बुक को थोड़ा इधर साइड करना है या दूसरी साइड करना है तो उसको हम पेन बोलते हैं। पेन का शॉर्टकट होता है स्पेस एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, so we can move our artboard to in which direction we want. Next one is zoom. Zoom is simply alt and scroll. वैसे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, सो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अगर हमें चाहिए कि हम इस टेक्स्ट को हमें इस टेक्स्ट को हमें डुप्लीकेट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? या तो आप ऐसे कर सकते हो, सारे सिलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल सी करेंगे, फिर जाके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, नया टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें कंट्रोल वी करेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हम इसको सीधा डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ओल्ट एंड ड्रैग, जिस चीज को आपने डुप्लीकेट करना है। वैसे ही सेम फॉर शेप्स, जस्ट क्लिक ओल्ट एंड ड्रैग, सो ये डुप्लीकेट कर देगा आपके ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट वन इज पेस्ट इन फ्रंट। सो पेस्ट इन फ्रंट क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज, जैसे लेट्स से कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं पहले। अब मुझे चाहिए कि ये वाला जो रेक्टेंगल है वो इन दोनों रेक्टेंगल के फ्रंट में आए। तो वो मैं कैसे करूंगा? आप या तो ये कर सकते हैं, आप राइट क्लिक में जाएं, अरेंज में जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इट विल कम इन फ्रंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। वैसे ही अगर इसको बैक करना हो तो सेम कंट्रोल शिफ्ट square bracket and it will go in back. Next one is our repeat operation. So कई बार होता है आप डिजाइन वगैरह बना रहे हो, कोई पैटर्न वगैरह बना रहे हो, तो उसमें रिपीटिशन की नीड होती है। जैसे कि मैंने कोई ग्रिड बनानी है, लेट्स से आई हैव टू मेक अ ग्रिड। सो मैं क्या करूंगा, अगर सिंपल वे से करें तो एक एक बार बार रेक्टेंगल बनाऊंगा एंड देन उनको डुप्लीकेट करूंगा, नेक्स्ट फिर डुप्लीकेट, फिर उनको अलाइन करूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होएगा। सो इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है। जैसे आपने इस साइड में एक ग्रिड बनानी है इन्हीं शेप्स की, सो जस्ट डुप्लीकेट वंस एंड देन कंट्रोल डी, इट विल ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट इन अ सेम प्रोसेस। वैसे अगर मैंने नीचे की तरफ बनाया तो एक बार आप उसको वो करिए, डुप्लीकेट एंड देन कंट्रोल डी, सेम फॉर दिस। एक बार अगर आप डुप्लीकेट करेंगे एंड देन कंट्रोल डी, so it will speed up your workflow. Next one is our clipping mask. So clipping mask क्या होता है? अब हमारे ये बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इनको एक स्पेसिफिक शेप में रखें, जस्ट लाइक कि हमें इसको एक, अभी मैं इसको वो बना देता हूँ कस्टम शेप। हमें ये पैटर्न इस शेप में चाहिए, जो ये बॉक्सेस वाला पैटर्न है, हम चाहते हैं हम इस शेप में आए, तो हम क्लिपिंग मास्क का यूज करते हैं। सो हमें इस पैटर्न को इस शेप में लाने के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल 7। सो कंट्रोल 7, सो आप देख पाएंगे कि सारे पैटर्न इस डेफिनेट एरिया एंड यू कैन से शेप में आ गए हैं। सो अगर इसको आपने फिर से बाहर निकालना है तो जस्ट क्लिक एंड राइट क्लिक एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क। नेक्स्ट वन इज अवर ब्रिंग फॉरवर्ड, ये हो गया। सेंड बैकवर्ड, ये हो गया। स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। सो हमें चाहिए कि ये सारे बॉक्सेस होलो हो जाए, मतलब इनका जो कलर है वो आउटलाइन में हो जाए एंड देन बीच वाला एरिया वो होलो हो जाए।
So what we can do, select all, and swap fill and stroke. Shift X. You can see जो कलर इनके अंदर था वो सारा आउटर लाइंस में चला गया. फिर से करेंगे शिफ्ट एक्स एंड देन अंदर आ गया. तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बताना भूल गया. स्ट्रोक इज एक्चुअली द आउटलाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी शेप, एनी टेक्स्ट. सो अभी यहाँ से आप स्ट्रोक का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं. अगर यहाँ से भी कर सकते हैं एंड यहाँ से भी. ये दो जो छोटे बॉक्सेस हैं, दिस वन इज फिल एंड जो पीछे वाला है दिस वन इज स्ट्रोक. जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है इसका मतलब है अभी कोई स्ट्रोक अभी एक्टिव नहीं है. सो अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे एंड देन गिव अ कलर टू अ स्ट्रोक लाइक रेड, ब्राइट रेड. देन you can see there is a stroke on the edges of this square. हम स्ट्रोक की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जस्ट इंक्रीज. बट हमें चाहिए कि हम रेड वाला अंदर लाएं एंड पर्पल वाला बाहर. सो व्हाट वी कैन डू, शिफ्ट एक्स, तो इट विल इंटरचेंज. नेक्स्ट वन इज इलिप्स टूल. इलिप्स टूल वही, अगर आपने इलिप्स बनाना है एल शॉर्टकट एंड देन जस्ट शिफ्ट एंड ड्रैग. तो आप एक सर्कल बन जाएगा. अगर सर्कल नहीं बनाना, सिंपल इलिप्स बनाना है तो बिना शिफ्ट के ड्रैग. पेंट ब्रश टूल. पेंट ब्रश वही बेसिक. पेंट ब्रश क्या करता है, आप कोई भी ब्रश से कोई भी पाथ बनाएंगे, कुछ भी हैंड ड्रॉन करेंगे, वो उसको एक पाथ में कन्वर्ट कर देगा. कई बार होता है कि हमें कुछ वेव्स बनानी है जो पेन टूल से नहीं बन रही. अगर हम पेन टूल से ऐसा बनाना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा. अगर हम ट्राई भी करेंगे, हमें बार बार ड्रैग क्लिक ड्रैग करना पड़ेगा. सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, ब्रश टूल. सो ब्रश टूल से क्या होता है, आप ऐसे स्मूथ कर्व्स आराम से बना सकते हैं एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू अ पाथ. You can also change the color of this bright red like this. Next one is rotate. Rotate is simple R. तो आप उसको किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अराउंड. सो जब आप R क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक ग्रीन सा डॉट आ जाता है. सो ये ग्रीन डॉट क्या होता है, ये होती है एक्सिस. सो अगर मैं इसको अब रोटेट करूंगा सर्कल को, तो ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होएगा. तो आप एक्सिस चेंज करके किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं. और अगर आपने सिंपल रोटेट करना है किसी चीज को, जस्ट गो ऑन द कॉर्नर एंड आपको एक आइकन दिखेगा एंड यू कैन ड्रैग एंड रोटेट. नेक्स्ट वन इज अलाइन. सो अलाइन टूल इज एन इम्पोर्टेंट टूल. या तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट F7, और यहाँ पे एक विंडो होती है अलाइन की, ये वाले दो रेक्टेंगल. इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो अलाइन करने की होती हैं, अलग अलग ऑपरेशंस. सो हम करके देखते हैं एक बार. मेक 2 and 3 shapes, change their color and तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सारे एक लाइन में अलाइन हो जाए. तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे एंड देन गो टू अलाइन टैब एंड हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर. इसको क्लिक करेंगे. सो सारे एक लाइन में अलाइन हो गए. एंड इफ यू वांट टू अलाइन इट वर्टिकली देन जस्ट सिलेक्ट वर्टिकल अलाइन सेंटर. अगर आपको कोई शेप आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन करनी है, मतलब ये स्क्वायर के सेंटर में अलाइन करनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे अलाइन टू में एंड देन सेलेक्ट अलाइन टू आर्टबोर्ड. सो मुझे ये चाहिए कि ये वाला जो रेक्टेंगल है आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड देन अलाइन हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल. सो ये अभी आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन हो गया. उसके बाद है ब्लेंड टूल. सो ब्लेंड टूल क्या करता है, सो ब्लेंड टूल कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक लेट्स से
वन दिस वे एंड दिस वे। सो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इसमें एक ब्लेंड बन जाए, एक कॉन्टिन्यूस शेप्स का ब्लेंड बने इसमें। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हियर इज अ ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस। तो हमें इन दोनों को ब्लेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड टूल का शॉर्टकट क्या होता है, इज W। सो वी कैन सेलेक्ट ब्लेंड टूल विद W, एंड जो जिन दो ऑब्जेक्ट्स में आपको ब्लेंड करना है, वेट इनका कलर चेंज कर देते हैं तभी पता लगेगा ब्लेंड का। लेट्स से पिंकिश। जिन दो ऑब्जेक्ट में आपको ब्लेंड करना है उन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, सो इट विल ब्लेंड लाइक दिस। आप इनको स्पेसिफिक स्टेप्स में भी कर सकते हैं। अब इसमें स्मूथ कलर में हुआ है, मतलब इसका जो कलर होएगा वो स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्पेसिफिक शेप्स में भी कर सकता हूँ ब्लेंड, लाइक एक एरे फॉर्म कर देगा। वी गो इनटू ब्लेंड ऑप्शंस, रिलीज, देन ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाइड स्टेप्स। मुझे चाहिए इसके अंदर एक दो रेक्टेंगल और आ जाए, दो स्टेप्स और आ जाए बस। ओके, एंड देन again select the blend tool, 1 2, so it will create a blended shapes। वैसे ही नेक्स्ट अपना undo, कंट्रोल Z, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट इज ग्रुप, सॉरी। सो ग्रुप क्या करता है, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं आर्टबोर्ड पे, देन वी हैव टू मेक ग्रुप देम। मतलब अगर मैं एक को मूव करूं तो सारे मूव हुए हैं, तो जो जो ऑब्जेक्ट आपको ने करने हैं उनको सबको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन कंट्रोल G, सो दे विल मेक अ ग्रुप। सो अगर मैं इनको चेंज करूंगा, ये चेंज करूंगा, तो सारे चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक का कलर चेंज करूंगा, पूरे ग्रुप का कलर चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट है अपना आर्ट बोर्ड। सो आर्ट बोर्ड, हाँ, कई बार होता है जब आप मैगजीन वगैरह बना रहे होते हो, कोई मैगजीन होगी या कोई ब्रोशर वगैरह हो गया, तो उसमें आपको अलग अलग पेजेस डिजाइन करने पड़ते हैं। फिर या तो लोग क्या करते हैं, या तो वो नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। बार बार एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जंप करना पड़ता है। जैसे मुझे अगर सेम डिजाइन दूसरी फाइल में भी चाहिए, तो मुझे कंट्रोल C फिर कंट्रोल V करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपसे आपका जो वर्क फ्लो है वो हिंडर हो जाता है। सो आर्टबोर्ड टूल क्या करेगा, आर्टबोर्ड टूल, दिस वन इज आर्टबोर्ड टूल, और यू कैन यूज द शॉर्टकट शिफ्ट O। आर्टबोर्ड एडिट कर सकते हो, तो सेम आर्टबोर्ड इस साइड पे आए, आप इसको मूव कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा डिजाइन बनाना हो जिसमें 2 पेजेस या 3 पेजेस हो, तो प्रेफर ये होता है कि एक ही फाइल में 3 पेजेस, 3 आर्टबोर्ड बना के उनको एक ही फाइल में बना दिया जाए। तो इससे वर्क फ्लो भी इजी रहता है, एंड काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हाइड ऑल मेन्यूज। सो ये तो बेसिक है, अगर आप टैब दबाएंगे तो सारे मेन्यूज हाइड हो जाएंगे, एंड आपका डिजाइन है जो फुल स्क्रीन में चला जाएगा। ये आपका डिजाइन एक बार चेक वगैरह करने के लिए इसको यूज करते हैं। So these are the important shortcut we use in Illustrator. And next one is our rule of graphic design. Now Ishleen will talk about the rules of graphic design layout. So now we'll discuss about the rules of graphic design layout. तो पहले स्टार्ट करते हैं फ़ॉन्ट्स से। फ़ॉन्ट्स का मेन पर्पस होता है रीडेबिलिटी। तो फ़ॉन्ट्स के अंदर हमें ध्यान रखना होता है फ़ॉन्ट सिलेक्शन का। हमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो कि काफ़ी रीडेबल हो। अगर हम बहुत ज़्यादा कर्सिव के अंदर चले जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कर्सिव के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है अल्फ़ाबेट्स के बीच में, और वो उस मतलब पढ़े नहीं जाते। तो ऐसे फ़ॉन्ट्स हमें नहीं यूज़ करने हैं, बट कर्सिव कहीं रीडेबल भी होते हैं, तो ऐसा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर रीडेबिलिटी अच्छी हो। नेक्स्ट इज़ हायरार्की एंड स्केल। इसके अंदर होता है कि हमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबको साइज़ और देना होता है। लाइक अगर हेडिंग है तो हम उसे थोड़ा बड़ा रखेंगे, और अगर कोई टेक्स्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है
तो हम उसे थोड़ा छोटा रखेंगे। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि अगर पोस्टर बनाते हैं, अगर टेक्स्ट ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर और किसी चीज़ की जगह ही नहीं होगी और सिर्फ हमें टेक्स्ट ही दिखेगा, तो वो प्रेफर्ड नहीं होता। और अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो कुछ पढ़ ही नहीं सकेगा बंदा, तो इसलिए टेक्स्ट का साइज़ भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद आता है ट्रैकिंग एंड कर्निंग। इसके अंदर होती है टेक्स्ट स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगा और तो उससे काफ़ी मेसी लगेगा पोस्टर हमारा, तो इसलिए हमें थोड़ी लाइन स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा टाइट ना आए, बट ये भी नहीं बहुत ज़्यादा खुला भी हो, तो उस हिसाब से पोस्टर के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट इज डोंट डिस्टॉर्ट टाइप फेसेस। इसके अंदर मेनली होता है कई लो क्वालिटी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण अगर हम उसे रीएडजस्ट करें, लाइक उसका साइज़ बड़ा या छोटा करें, तो उसके कारण वो टाइप फेसेस काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। उसके बाद है डोंट यूज़ टू मैनी टाइप फेसेस। अब जैसे अगर हम एक पोस्टर बना रहे हैं, ये होता है कि हमें एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी चाहिए, ये प्रेफर्ड होता है, और मैक्स टू मैक्स 3 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, इट जस्ट लुक्स रियली मेसी, इसलिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा कलर्स, कि हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं एंड कौन से नहीं। The first rule is use balanced color scheme, that is not too vibrant colors and not too dull colors. अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा तो भी नहीं वो अच्छा लगता, लेकिन इतना, और अगर बहुत ज़्यादा डल होगा तो मतलब पोस्टर पोस्टर नहीं रहेगा। पोस्टर का एक मेन हमारा मकसद होता है कि हमें इम्पैक्ट डालना है जो उसे व्यू कर रहा है, ताकि उसे याद रहे कि हाँ, हमने ये पोस्टर देखा था। तो अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा डल होगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा व्यूअर के ऊपर, जो हम चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ कलर कंट्रास्ट रेशो। इसके अंदर होता है कि अगर हम पीछे लाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम जो टेक्स्ट यूज़ करेंगे वो थोड़ा डार्क हो। लाइक अगर हम वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो हम डार्क कलर्स यूज़ करें, जैसे नेवी ब्लू हो गया। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर ही आप देख सकते हो, हमने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू यूज़ किया है। और हो गया कि अगर हम डार्क यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड, तो उसके ऊपर हम कोई लाइट फ़ॉन्ट रखें, लाइक लाइक लाइट कलर यूज़ करें। डार्क के ऊपर डार्क हम प्रेफर नहीं करते। और द नेक्स्ट इज़ ट्राई यूजिंग अ सिंगल कलर पैलेट। अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो ये सबसे पहले रिकमेंड करूँगी मैं कि इंटरनेट के ऊपर कोई कलर पैलेट सर्च करो एंड स्टिक टू इट। अगर हम बहुत सारे कलर पैलेट्स एक ही के अंदर मिक्स कर देंगे, इट विल लुक अ मेस। तो एक कलर पैलेट सेलेक्ट कर लो और उसी के ऊपर काम करो। द नेक्स्ट इज टिक टू अ टेम्परेचर रेंज। हमारे पास 2 टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, वार्म एंड कूल। वार्म कलर्स के अंदर आता है रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये कलर्स आ जाते हैं। और कूल के अंदर होता है पर्पल, ब्लू और इसके शेड्स। तो अगर हम एक पोस्टर या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम रिकमेंडेड होता है कि आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हो वो एक ही टेम्परेचर रेंज के हों, या तो वार्म हो या कूल हो। द नेक्स्ट इज़ अवॉइड कलर डिस्टॉर्ट। तो हमें पोस्टर या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है अलाइनमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर ऑब्जेक्ट्स आर वेल अलाइंड। मतलब अगर आप किसी लेमैन को कोई पोस्टर दिखाओगे और आपके पोस्टर की अलाइनमेंट अगर हल्की सी भी इधर उधर हुई, तो ही विल थिंक समथिंग्स रॉन्ग विद दिस पोस्टर। तो इसलिए अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये अलाइन हमने चीज़ों को ऐसे करना है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम टेक्स्ट या फोटोग्राफ्स, वो प्रॉपरली अलाइंड हो, ताकि ऐसा लगे इट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अच्छा लगे। अगर हम रैंडमली किसी भी चीज़ को कहीं पे भी एक डिज़ाइन के अंदर डाल देते हैं तो इट जस्ट लुक्स मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए अलाइनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज़ विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की के अंदर होता है कि हमें विजिबल होना चाहिए कौन कौन सी डिविजन्स हैं, नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ विजुअल हायरार्की थ्रू आउट योर डिज़ाइन। तो a person should be able to differentiate between headings and text.
तो विजुअल हायरार्की के अंदर मेनली होता है हमें साइज और कलर से का यूज़ करके एक आइटम को एम्फसाइज करना है जो इम्पोर्टेंट है, ताकि हम व्यूअर की अटेंशन उस चीज़ के ऊपर ला सकें। जो साथ में इलस्ट्रेशन के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारी सबसे पहली नज़र जाती है हेडिंग के ऊपर। हम टेक्स्ट नहीं पहले पढ़ते हैं, हम हेडिंग पढ़ते हैं, तो फिर इसलिए हमने हेडिंग को थोड़ा बड़ा रखा है। और अगर डिज़ाइन के हिसाब से हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक पोस्टर ब्रेक डाउन करते हैं। एक पोस्टर के अंदर मेनली ये सब चीज़ें होती हैं: लोगोस, बैकग्राउंड, टाइटल, रेलेवेंट ग्राफिक, इवेंट इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर हम इसके अंदर शुरू से देखें रूल्स हमारे, पहला फ़ॉन्ट था हमने किया, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमने एक ही फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। बस जो हमारी टाइटल है उसे हाईलाइट करने के लिए हमने थोड़ा डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ किया है। उसके बाद हम कलर्स का देखते हैं। इसके अंदर एक ही कलर स्कीम यूज़ की हुई है और वो थोड़ी ऑर्गेनाइज़्ड लग रही है, और हमने डार्क के ऊपर लाइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें एक पोस्टर डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अलाइनमेंट। सब कुछ आप देख सकते हो एक अलाइन्ड है और कुछ इधर-उधर नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट इज़ विजुअल हायरार्की। हमने जैसे टाइमिंग को हाइलाइट किया हुआ है, डेट को हाइलाइट किया हुआ है और सेशन ओवरव्यू को हाइलाइट किया हुआ है और टाइटल को हाइलाइट किया हुआ है। तो ऐसे करके हम कलर्स और साइज़ को लेके हम विजुअल हायरार्की सेट करते हैं। तो next is I'll pass it over to Ashutosh. He'll tell you about the competition. Thank you, Ishteen. Now we will make a poster on Illustrator. Here is a poster हमने बनाया था हैक अक्टूबर फेस्ट के लिए। हम इसको फिर से रीडिज़ाइन करेंगे। इसको फिर से बनाएँगे कि किस प्रोसेस से बना था, क्या-क्या एलिमेंट यूज़ करे और किस हिसाब से हमने इसको यूज़ करा। हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एंड तक ये प्रोडक्ट बनाएँगे। फर्स्ट वी विल मेक अ न्यू फाइल, जस्ट गो टू फाइल एंड देन न्यू। Then we will change the size. Mostly size, as हमने ये पोस्टर यूज करना है हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, तो हम उसी हिसाब से इसको साइज सेट करेंगे। मोस्टली सोशल मीडिया हैंडल्स 4:5 पे चलते हैं। 2000 इंटू 2500 पिक्सल्स। एज वी सी क्या क्या एलिमेंट होते हैं पोस्टर में: लोगो, बैकग्राउंड, टाइटल, रेलेवेंट ग्राफिक, इवेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो। हम इन सबको यूज करके एक पोस्टर बनाएंगे अभी। फर्स्ट हमें चाहिए पहले हम वो कलेक्ट करेंगे। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज द टाइटल, एंड देन टाइटल जो हमारा अक्टूबर फेस्ट की थीम वाला फॉन्ट है, वो वाला फॉन्ट अक्टूबर फेस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द ग्राफिक ऑफ एन कोडिंग पीसी, देन प्लेटफॉर्म, टाइमिंग, स्पीकर्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। फर्स्ट पहले जो सॉरी जो अक्टूबर फेस्ट जब आता है तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजिंग किट देते हैं, जो भी इवेंट्स कराने होते हैं, कि एक थीम रहे उसकी पूरे अक्टूबर फेस्ट की। पिछली बार कलर स्कीम शायद ब्लू वगैरह थी, इस बार इन्होंने ऑरेंज एंड देन इट डार्क ब्राउन सी कलर में रखी है। आप अक्टूबर फेस्ट की साइट पे जाके वर्चुअल स्वैग किट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको कुछ फाइल्स देते हैं जिसको आप यूज करके अपना पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ से
ओपन में भी सो इसके बिना ही बना लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, यहीं से कलर पिक कर लेते हैं। सो फर्स्ट अब हमारा आएगा बैकग्राउंड। सो हम बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे? ओह शिट, बंद कर दिया, सॉरी। सो हमें फर्स्ट बनाना है अपना बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड हम सिंपल एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। रेक्टेंगल शेप के लिए हम शॉर्टकट की एम, देन जस्ट होल्ड एंड ड्रैग। सो हियर इज योर लेयर्स पैनल। जो भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके लेयर्स पैनल में दिखेंगे। तो हमने अभी एक लेयर वन में एक रेक्टेंगल बनाया है, सो आपको यहाँ रेक्टेंगल दिख जाएगा। देन वी हैव टू कलर दिस रेक्टेंगल। सो हम जो पोस्टर का थीम होगी वो इवेंट के हिसाब से रखेंगे। अगर मैं कोई अक्टूबर फेस्ट का इस बार की थीम जो फ्लोरल एंड मटेरियल सी थी, तो हम ट्राई करेंगे हम वही बने पोस्टर। सो फर्स्ट वी कैन पिक द कलर विद आई ड्रॉपर टूल। जस्ट क्लिक आई एंड देन select. So we go to our background. Then next one is our heading. Next one is our logos. सो लोगो जो भी आपके कॉलेज वगैरह के होंगे या जो आपकी कंपनी जो इवेंट करवा रही है एंड जो आपका ऑर्गेनाइजर है उनके लोगोज आते हैं। तो देर आर अब हम हमें लोगोज, हम कोई भी इमेज होगी, कोई भी लोगो हो गया, वो इलस्ट्रेटर में डालेंगे। ऐसे इसके भी दो वेज होते हैं, या तो सीधा आप सीधा जाके यहाँ से पिक करके डाल सकते हैं, जस्ट होल्ड एंड ड्रैग, और यू कैन गो इनटू फाइल देन प्लेस एंड यहाँ से भी चूज करके आप डाल सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस। So we will set the logo first. Next one is our text and the Hacktoberfest vector. So ये Hacktoberfest vector उन्होंने दिया था वर्चुअल स्वैग किट में, अभी खुल नहीं रहा, तो हम यहीं से पिक कर लेंगे। ये उन्होंने दिया था, तो कंट्रोल सी एंड देन पेस्ट इट हियर। So title of the poster is Hack the October with Hacktoberfest. Let's learn Git and GitHub together. So first we will create a text box and then type our title. Change its properties, size increase कर लेंगे। अब कई बार होता है हमें टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो, लेकिन इससे बहुत स्लो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टाइप की में, एंड देन इट कन्वर्ट इट टू पॉइंट टाइप। सो पॉइंट टाइप से क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो वी कैन जस्ट सिंपली देन क्लिक एंड ड्रैग, सो इसका टेक्स्ट साथ साथ में बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया टाइप में करेंगे, तो अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पॉइंट टाइप में ऐसा होता है कि पॉइंट टाइप में आप सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करके ही अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो वी विल चेंज द फॉन्ट। let's align it in center। now इसका साइज, now we have to duplicate this text, just hold alt and drag। इसमें हम डाल देंगे with, इसमें इसका साइज चाहिए छोटा।
and then group it together. Next is our Hacktoberfest, जो उनका मेन थीम थी वो वाला फॉन्ट। सो ये एक वेक्टर है, अगर ये इमेज होती तो हम इसको एडिट नहीं कर पाते। तो वेक्टर में क्या होता है, ये सारी शेप्स हैं, बट हमें चाहिए कि Hacktoberfest एक लाइन में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अनग्रुप करेंगे, फिर आप देखेंगे सारे सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए हैं। तो फिर हमें सिलेक्ट, जो हमें एक लाइन में लाना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, देन कंट्रोल जी, and then align them vertically. नेक्स्ट अपने ये फ्लोरल डिजाइन, इनको भी अलग अलग करके छोटा, इनको भी अलाइन करेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन, देन ग्रुप ऑल थ्री। नेक्स्ट अपना सेकंड हेडिंग, लेट्स लर्न गिट एंड गिटहब टुगेदर। तो अगर आपने एक दूसरी हेडिंग डालनी है तो बार बार टेक्स्ट उसको करने से बढ़िया इसको ही कॉपी कर लेंगे, देन विद नहीं चाहिए हमें, लेट्स लर्न गिट। हमें सेंट्रल लाइन चाहिए, जो हम यहाँ पैराग्राफ से इसको चेंज कर देंगे। जो भी कलर्स वगैरह है वो मैं ट्राई करता हूँ कि एंड में डालूं, पहले सारा एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए। किसी भी पोस्टर आप बना रहे हो उससे टाइम बचता है, अगर अभी आप कलर वगैरह करने लगोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। पहले एक बेसिक आउटलाइन बना के देन ट्राई टू कलर द पोस्टर। तो लेट्स लेट्स रन को थोड़ा छोटा करेंगे, देन सो नेक्स्ट वन इज आवर ग्राफिक। सो ये ग्राफिक्स आपको वेक्टर रिसोर्सेज बहुत होते हैं इंटरनेट पे। आप मतलब मैंने यहाँ पे लिस्ट भी करे हैं थोड़े से। So these are the some site for graphic design resources, fonts, vectors वगैरह। So ऐसे ग्राफिक्स आपको, या अगर आप अब खुद बनाने को लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बनाने में तो बन जाते हैं, लेकिन अगर मिल रहे हैं ऑनलाइन तो ऐसा है कि उठा लेना चाहिए। सो दिस इज द साइट स्टोरी सेट। तब तक दूसरे टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ये द साइट, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के वेक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको रेलेवेंट चाहिए होते हैं अपने डिजाइन के लिए। जैसे अभी मैं सर्च करूंगा कोडिंग,
इस साइट का ये फायदा होता है कि आपको सारे जो वेक्टर्स होते हैं वो एआई फॉर्मेट में मिल जाते हैं, सो एडिटेबल होते हैं सारे। सो लेट्स फाइंड अ रेलेवेंट। ये अच्छा लगा मुझे। इसमें एक और फीचर है कि आप कलर यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि इसकी जो हाईलाइटेड कलर है, जैसे येलो है, इसको आपको चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारा थीम का कलर है अभी ऑरेंज, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसका कलर पिक कर लेंगे यहाँ से। बिकॉज कलर हार्मनी बनाना जरूरी होता है पोस्टर में। अगर हम येलो कलर का उसमें डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट चेंज द कलर हेयर, हल्का सा लाइट रखेंगे, देन डाउनलोड एसवीजी। एसवीजी फॉर्मेट भी इलस्ट्रेटर का ही एक फॉर्मेट होता है, जिसको आप वेबसाइट वगैरह पे भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको एडिट ना करना हो, जैसे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो सीधा एसवीजी यहाँ से एडिट करके देन सीधा अपलोड ऑन योर वेब वेबसाइट एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म। शो इनटू फोल्डर एंड देन पिक एंड ड्रॉप। So here is our vector, control C and control V। थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये बहुत क्लटर्ड ग्राफिक है, तो हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। हमारी यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है, तो इन वेक्टर्स को भी एडिट करना अगर तब आपको तभी आएगा अगर आपको इलस्ट्रेटर थोड़ा बेसिक्स पता होंगे। सो हम इसको एडिट करेंगे अनग्रुप करके। जस्ट इसके जो फालतू वाले एलिमेंट है वो डिलीट करके देन it looks a little now next one is our platform, timing, speakers and contact info। so we will platform, इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज छोटा। इनको अलाइन करेंगे।
सेम फॉर स्पीकर्स, बस उनको लेफ्ट अलाइन की जगह राइट अलाइन कर देंगे. Then timings. अब हम इनको रिकलर करेंगे. सो ये टेक्स्ट चाहिए हमें वाइट. Just select all the text and then white color. वाइट चाहिए हमें. नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फो ऐसा होता है कि सब में सेम ही डलती है. सो यू जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर फ्रॉम योर प्रीवियस पोस्टर्स एंड देन पेस्ट. योर पोस्टर इज रेडी. व्हाइट लोगो भी है नहीं मेरे पास. तो बेसिक पोस्टर के लिए यही एलिमेंट जरूरी होते हैं. आपका लोगोस, टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अलाइनमेंट. फॉन्ट मैंने इसमें सिर्फ 2 ही फॉन्ट यूज करे हैं. एक अपना टाइटल्स के लिए एंड देन नेक्स्ट अपना इंफॉर्मेशन के लिए. कलर्स कलर्स वही वही जो हमें कलर थीम मिली थी, हमने ट्राई करा हम उसी कलर थीम में रहें. सो एक पोस्टर के यही एलिमेंट्स होते हैं कि आप कि आप ये सारे एलिमेंट्स अगर सही से अगर अपने पोस्टर में डाल दें तो आपको पोस्टर बढ़िया है. सो वर्कशॉप यहीं तक थी. नेक्स्ट है अपना पोस्टर डिजाइन कंपटीशन V5. So here's the information about the competition. The submission will be up to 15/11/2021 11:59 PM. सो पोस्टर की थीम होगी कोडेथॉन. मतलब जो कोडेथॉन के इवेंट्स होते हैं उस पे एक पोस्टर बनाना है जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं, जैसे कि अपनी डेट होगी, ये प्लेटफॉर्म हो गया, वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं. बाकी पार्टिसिपेंट अलाउड टू यूज एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे कैनवा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ये अपना फोटोशॉप हो गया, इन डिजाइन हो गया, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. ट्राई करना कि थोड़ा ओरिजिनल हो पोस्टर, क्योंकि पता कई जो टेम्पलेट्स होते हैं ना उनका पता लग जाता है देख के कि ये अपने आप बनाया है या टेम्पलेट है. सो हियर आर द सम साइट्स फॉर ग्राफिक डिजाइन रिसोर्सेज. मोस्टली मैं इन्हीं साइट्स पे रेफर करता हूँ. कोई भी अगर मुझे कोई भी रिसोर्स चाहिए होता है, जैसे फोन्ट्स के लिए अपनी ये 3 साइटें हैं. फोन्ट गूगल फोन्ट्स होगी, डा फोन्ट होगी, कलर पैलेट्स के लिए, ग्रेडियंट्स हो गए डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए, एंड वेक्टर अलावा के लिए. सारी साइट्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं कि आपको अगर फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ से आप पिक कर सको. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन डाउट्स हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे डाल देंगे आज शाम तक. सो आपको वहाँ पे PDF का डाउनलोड लिंक भी मैं डाल दूंगा. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर देयर. थैंक यू ऑल.